Hello, my dear students. Welcome to our channel. Today we are going to start a new chapter that is physical and chemical changes. Students, this is our chapter in class 7 science. We are going to do this chapter physical and chemical changes. So here we understand that what are physical and chemical changes. So in this chapter, complete chapter, we will understand what are physical changes. Physical changes क्या होते हैं, chemical changes, rusting of iron, and with that we will study crystallization. Right? We mainly will discuss 4 topics here: physical changes, chemical changes, rusting of iron, and crystallization. Now here introduction is: make a list of 10 changes you have noticed. Make a list of 10 changes you have noticed around you. आपको 10 changes के बारे में क्या करना है, नोट करना है. You are there in the class or out of the class, at home or anywhere if you are, you need to notice 5 changes which are occurring around you. In this chapter we shall perform some activities and study द नेचर ऑफ दीज चेंजेस. हम क्या करेंगे, नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो चेंजेस हैं वो किस तरह से होते हैं. ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ 2 काइंड. बट वी सी दैट इफ समथिंग दैट इज चेंजिंग इन आर सराउंडिंग, सो दिस चेंज मेनली अकर इन 2 ways. फर्स्ट, दैट इज फिजिकल चेंज, एंड सेकेंड दैट इज केमिकल चेंज. हो सकता है वो चेंज क्या हो, फिजिकल चेंज हो, राइट, एंड हो सकता है वो क्या हो, केमिकल चेंज. सो हाउ यू नो कि कैसा चेंज होगा, ये फिजिकल होगा ये केमिकल चेंज होगा मैम. ओके, सो दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो टाइप ऑफ चेंजेस, इफ यू विल सी दैट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस कैन बी पॉसिबल. सो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल. राइट, टाइम इंटरवल के बेसिस पर हम चेंजेस को पढ़ सकते हैं. द फर्स्ट इज पीरियोडिक चेंज. व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक? कंसीडर अ गर्ल दैट इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग. राइट, एक लड़की है जो झूला झूल रही है. सो व्हाट यू ऑब्जर्व एट वन टाइम शी विल गो फॉरवर्ड देन बैकवर्ड. सो दिस मोशन विच इज कंटिन्यूइंग रिपीटिंग इटसेल्फ, दैट काइंड ऑफ मोशन वी कॉल्ड इट periodic motion. Right, and some kind of motions which are non-periodic, which not repeat itself, जो अपने आप को repeat नहीं करते, right, which does not repeat itself, that kind of motions are called, we call them non-periodic motion. Periodic motion, what we are saying, which repeat itself, जो अपने आप को repeat करे. For example, pendulum. You have seen some watches in that we have a pendulum. So that pendulum moves back and forth, आगे और पीछे घूमता है, right? So that kind of motion is what kind of motion? Periodic motion. Non-periodic motion, here in the figure you can see this when the cars are moving, right, forward direction. तो आप देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जो गाड़ी है वो आगे चलती जा रही है ना, तो वापस नहीं आ रही बार बार. तो that is non-period motion, non-periodic motion. Now after this time period, we say we can define it as based on speed also. Based on speed, we say that motion can be slow or fast. कोई भी चेंज क्या हो सकता है, या तो वो स्लो होगा, और अगर स्लो नहीं है तो वो कैसा होगा, फास्ट होगा. राइट, either it is a slow change or a fast change. हो सकता है वो जल्दी जल्दी हो जाए, हो सकता है वो धीरे धीरे चेंज हो. फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, बहुत सारे चेंजेस पढ़ते हैं हम. तो वो जो चेंजेस होते हैं वो स्पीड के बेस पर हम कहते हैं या तो स्लो होंगे या फिर फास्ट होंगे. नाउ आफ्टर दिस वी हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज रिवर्सिबिलिटी. रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं रिवर्सिबल हो सकते हैं या नॉन रिवर्सिबल हो सकते हैं. राइट, रिवर्सिबल क्या होते हैं, द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स, विच कैन बी
reverse. What do you mean by reverse, ma'am? I will tell you by a example. For example, if you have a water, a glass of water, right? Glass of water. Now this glass of water put in a refrigerator, right? So after some time, what you observe, that this glass of water, that water changes to ice. Now this ice you keep out of the fridge, out of the refrigerator, then this ice again will become water. So here what you see, that water changes to ice and ice changes to water. Is it a reversible process? Yes, students. So what we observe, that if any case a substance changes to the similar condition, right, सेम पोजिशन पर आ जाता है, आफ्टर सम चेंजेस इट कम टू द सेम कंडीशन, देन वी से इट इज अ रिवर्सिबल. एंड समवेयर वी से नॉन रिवर्सिबल. व्हाट आर नॉन रिवर्सिबल? फॉर एग्जांपल एन एप्पल. सो एन एप्पल व्हेन यू ईट इट, इट बिकम रेड कलर, ऑरेंज रेड हो जाता है, राइट. नाउ इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा आपने देखा है कि वो दोबारा से सेम हो जाए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो दिस इज नॉन रिवर्सिबल चेंज, राइट. सो हियर व्हाट यू ऑब्जर्व, दैट केमिकल चेंजेस वी से फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रिवर्सिबल. फॉर एग्जाम्पल, कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर. अगर आप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलता है? H2O. Twice of hydrogen plus oxygen will give you H2O, and this is a chemical change. But you can reverse by a chemical change, right? आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर रिवर्स कर सकते हैं, राइट. नाउ नॉन रिवर्सिबल क्या होंगे? नॉन रिवर्सिबल क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग अ कैंडल, राइट, कैंडल को अगर आप क्या करोगे? बर्न करोगे, तो दैट काइंड ऑफ चेंज, राइट. सो हियर नेक्स्ट इज व्हाट? फिजिकल चेंज. Those changes in which no new substances are formed. केमिकल में हमने कहा नॉन रिवर्सिबल होनी चाहिए, राइट. अब आप कहते हो कि वहाँ पर क्या होगा? कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनेगा. इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, राइट. और ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं. द चेंज इन स्टेट, साइज, शेप, कलर ऑफ अ सब्सटेंस, दीज आर फिजिकल चेंज. किसी के भी स्टेट में चेंज होना, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आइस का वाटर बन जाना, वाटर का दोबारा से आइस में कन्वर्ट होना, दैट इज व्हाट? इट इज ए फिजिकल चेंज. क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल चेंज बोलते हैं. नाउ किसी के भी साइज में चेंज होना, किसी के शेप में चेंज होना, राइट, उसके कलर में चेंज हो जाना, राइट. सो दीज आर व्हाट? दीज आर फिजिकल चेंज. कैसे चेंजेस होते हैं ये? फिजिकल चेंजेस होते हैं. Now, the properties such as state, size, shape and color of a substance are its physical property. क्या बोलते हैं इनको? Physical properties. Now, physical changes. Here we are understanding physical properties. Physical properties include size, shape, color and state. What are the states? Solid, liquid and gases. So any change to the physical property of a substance is called a physical change. किसी की भी फिजिकल प्रॉपर्टी जब चेंज हो जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये सारे अगर चेंज हो रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज आर यूजली रिवर्सिबल. कैसे होते हैं? रिवर्सिबल. आप उनको रिवर्स कर सकते हो, राइट. एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा. इट इज द सेम सब्सटेंस बट विद द चेंज फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट. थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है बट सब्सटेंस तो एज इट इज रहेगा. इट मीन्स वो हमारा क्या बन जाएगा? फिजिकल चेंज बन जाएगा. नेक्स्ट example of a physical change we are going to understand now. What are the examples? And by example you can understand it better. For example, if you are taking crushing of a can, कोई कैन लो, राइट, और उसको क्रश कर दो, राइट. सो व्हाट डू यू सी? उसकी शेप में चेंज आ गया, राइट. बट क्या कोई नया सब्सटेंस बना? No, there is no change in the substance and we say it is a physical change. Melting of an cube, कोई भी आइस क्यूब है, राइट, आइस से क्या होगा? वाटर बन जाएगा. तो देर इज अ स्टेट चेंज, स्टेट में चेंज हुआ. बॉइलिंग वाटर, वाटर से क्या हुआ? लिक्विड से किस में चला गया? स्टीम में चला गया, राइट.
So this is what? Which kind of change? It is a physical change. Mixing sand and water, breaking of a glass, dissolving sugar and water. These all changes are physical change. Now, breaking glass, mixing candies, shredding paper, folding paper, melting ice, chopping a wood, cutting hair, dry ice sublimation, boiling water, breaking of egg. That is also a physical change. Now, here we have chemical changes. Now let us understand what are chemical changes. So students, chemical changes is a change of a material into another. जब कोई मटेरियल चेंज हो जाए, राइट, और चेंज होके एक नया मटेरियल बन जाए, राइट, देयर इज अ चेंज इन दैट एंड इट विल फॉर्म अ न्यू मटेरियल. सो वी कॉल दैट चेंजेस. उस चेंज को हमने क्या बोला? केमिकल चेंज बोला. एंड वन और मोर देन न्यू, ऐसा भी हो सकता है एक और उससे ज़्यादा भी सब्सटेंस बन सकते हैं. सो ए चेंज इन विच यू आर क्वाइट फैमिलियर, दैट इज अ रस्टिंग ऑफ आयरन. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जब आयरन है, राइट, आयरन को आप देखते हो कि वॉशरूम्स के जो गेट होते हैं जो पहले होते थे वो आयरन के होते थे, और आयरन के जो गेट होते थे वो नीचे से ऐसे टूट जाते थे. वाई? बिकॉज दे गेट रस्टेड, राइट, उनको रस्ट लग जाता था, और रस्ट लगने की वजह से वो ब्राउन कलर के हो जाते थे, राइट. और ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस बनता था दैट इज ए न्यू सब्सटेंस. वो ऐसा नहीं है कि वो आयरन ही रहता था, राइट. सो व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या समझा यहाँ पर कि जब आप कह रहे हो कि कोई भी आयरन का रस्ट हो रहा है, इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर ए फिल्म ऑफ अ ब्राउनिश सब्सटेंस. आप देखते हैं उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस बन जाता है. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड द रस्ट. ऐसा जो सब्सटेंस होता है उसको रस्ट बोलते हैं, और प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? रस्टिंग. वी कॉल्ड इट रस्टिंग, राइट. नाउ iron gate of a park or a farmland, iron benches kept in lawn and a garden, almost every article of iron kept in the open get rusted. आप देखते हैं कि जो भी आर्टिकल कहाँ ओपन में रखा होता है उसके ऊपर रस्ट लग जाती है. At home you must have a seen shawls, spades, they get rusted when exposed to the atmosphere so for some time. कुछ देर के लिए अगर आप कोई भी सब्सटेंस है उसको बाहर रखोगे तो क्या होगा? जो वाटर होगा वो इसके साथ क्या करेगा? एक्सपोज करेगा, राइट, उसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके उस आयरन को किस में चेंज कर देंगे? हम रस्ट में चेंज कर देंगे, राइट. इन द किचन अ वेट आयरन पैन, आपने देखा हो अधिकतर जिस पर आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, या फिर कोई आयरन का कोई यूटेंसिल होता है तो उसको अगर पानी में रखा जाता है तो वो क्या बन जाता है? रस्ट बन जाता है. इट इज़ नॉट एन आयरन. It is different from iron on which it get deposit, right? Different from iron on which it get deposit, right? तो वो एक substance होता है जो iron के ऊपर आ जाता है. Now let's understand the examples of it. Burning of paper and log of wood, digestion, खाने का पचना. अब आप सोचो फूड से हमने कहा डाइजेस्ट होकर क्या बन गया? वेस्ट बन गया, है ना. हमारी बॉडी क्या करती है? जो यूजफुल सब्सटेंस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो बचा कुचा होता है वो बाहर निकल जाता है. अब क्या उस वेस्ट से फूड बन सकता है? नॉट पॉसिबल. इट मीन्स अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, राइट. बॉइलिंग ऑफ एन एग, केमिकल बैटरी यूसेज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल, बेकिंग अ केक, मिल्क गोइंग सॉर. मिल्क का कर्ड में चेंज हो जाना, राइट. कर्ड से मिल्क बन सकता है? नॉट पॉसिबल. सो दिस इज व्हाट इट इज ए केमिकल चेंज. क्या होता है? ये एक केमिकल चेंज होता है. नाउ हियर एग्जांपल्स ऑफ अ केमिकल चेंज, वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द सेल्स. हियर रोटिंग ऑफ अ फ्रूट्स का रोट हो जाना, ठीक है, सड़ जाना. डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेस्ट, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, रिएक्शन बिटवीन सॉल्ट एंड एसिड, rusting of iron and lighting a matchstick. These all are the examples of chemical changes, right? Now let's see the flow chart of it. Changes, we say there are two kind of changes. What is physical change? Another is a chemical change. In a physical change we say it is a reversible process, right? ये reversible होता है. और chemical we say it is a non reversible. ये कैसा होता है? non reversible होता है. Now examples are here melting of ice, evaporation and cutting a paper. There is no new substance which is formed here. In chemical changes we say
न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है, रस्टिंग होगा, फायर वर्क, बर्निंग ए पेपर, है ना। अब पेपर बर्न हो गया, दोबारा पेपर नहीं बन सकता। सो दिस इज अ केमिकल चेंज. Chemical changes, a chemical reaction form a new product. In this, matter changes but not chemical identity. Identity change नहीं होती, right? So these are the examples: combustion, rotting, rusting, digestion, right? Physical we have melting, shredding, boiling, chopping. आप देख रहे हो सेम substance बन रहा है यहाँ पर, ठीक है? So these are this. Now let's understand the difference between a physical and chemical changes. So here what we observe, this is a change where the molecule rearrange. Physical में क्या हो रहा है, जो molecules है वो rearrange हो रहे हैं, but no change in their composition. Composition में कोई change नहीं आ रहा. Chemical में क्या होता है, एक नया substance बनता है और एक different composition बन जाती है, ठीक है. Now what is the nature here? These changes are reversible. अभी मैंने बताया था, जैसे एग्जाम्पल लिया था, आइस से वाटर, वाटर से आइस, राइट. सो दिस इज अ केमिकल, दिस इज अ फिजिकल चेंज, बट दीज आर इरिवर्सिबल. ये इरिवर्सिबल होते हैं. किसी पेपर का बर्न होना, राइट, पेपर का बर्न होना, तो फिर दोबारा से पेपर नहीं बन सकता ना, तो दीज आर इरिवर्सिबल. कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल. नाउ लेट्स सी द इम्पैक्ट. इट इम्पैक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप चेंज होगी, साइज, कलर एंड मोर. In this changes the physical property as well as the chemical property. No absorption or evolution of energy. यहाँ पर कोई भी एनर्जी इवॉल्व नहीं होती. पेपर को अगर आप श्रेड करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करोगे, तो क्या एनर्जी इवॉल्व होती है, नो, राइट. ड्यूरिंग द रिएक्शन एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन, कोई भी एनर्जी या तो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होके ही केमिकल चेंजेस होते हैं. एग्जाम्पल्स: कटिंग ऑफ वुड, freezing water, melting of ice cube, crushing a tomato. These all are physical change. Burning of wood, digestion. These are physical change. Burning of wood, digestion of food, baking of cake, rusting of iron. These all are example of chemical change. लकड़ी जब जल जाएगी तो it will not form a wood again. Digestion of food, that is a chemical change. Baking of cake, cake baked हो जाता है ना. आयरन का रस्ट होना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे किसके, केमिकल चेंजेस के. नाउ हेयर दिस इज वन कैन रिकवर द ओरिजिनल मैटर, राइट. आप किसी भी फिजिकल चेंज में दोबारा से ओरिजिनल मैटर को ले सकते हो, बट एक बार जब यहाँ पर चेंज होगा तो उसको आप क्या कर सकते हो, ओरिजिनल मैटर को नहीं ला सकते. वुड को बर्न करके दोबारा वुड नहीं बनाया जा सकता. इट डज नॉट फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट. ये नया प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनाता. और ये क्या करता है, केमिकल चेंज में एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है. जैसे आयरन का रस्ट होने पर रस्ट बन रहा है, राइट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड that what are physical changes, what are chemical changes. I am concluding it that we studied about the two changes. What are these changes? These are physical changes and chemical changes, right. In this physical changes mainly we see the changes that occur due to the time interval we studied, that is periodic, right. And with that speed we studied, that is slow or fast, and other that is reversible or irreversible, right. So in this physical change we say they are reversible and these are irreversible. ये कैसे होते हैं, irreversible. Here there is no new substance formation. यहाँ कोई भी नया substance नहीं बनता. chemical changes में हमेशा एक नए substance की formation होती है. यहाँ पर जो chemical composition होती है that remains same. यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगी और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि कोई भी केमिकल जो चेंज होता है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा. केमिकल कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी, राइट. हेयर वी सी दैट इन द फिजिकल चेंज वी कांट रिकवर द ओरिजिनल सब्सटेंस. ओरिजिनल सब्सटेंस को आप रिकवर कर सकते हो, वी कैन, है ना. और यहाँ पर ओरिजिनल सब्सटेंस को रिकवर नहीं कर सकते. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर दिस डिफरेंस. ओके, वी कैन अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स हेयर. कि एग्जाम्पल्स में जब हम करते हैं कि अगर आपने कोई भी एक वुड लॉग को लिया, राइट, तो बिफोर दिस इट इज़ हेयर एंड आफ्टर बर्निंग ये बन जाता है और वो क्या होता है, पाइल ऑफ ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राइट.
And lemon, if you are taking, so if you are taking lemon complete and then cut into the slice, तो substance तो वही रहा ना, lemon ही तो रहा, lemon change नहीं हुआ. Okay, so these are the examples. Hope you like the video. If you like it, please share it with your friends, subscribe the channel. Till we will come soon, and till then, tata, bye bye, take care of yourself and study more and more, and smart work is more needed than the hard work, right? Thank you, bye bye.